Sports teaches you character. It teaches you to play by the rules. It teaches you to know what it feels like to win and lose. It teaches you about life. This beautiful quote by Billie Jean King sums up what importance sports hold in our lives. A very good morning to everyone and a warm welcome to all the dignitaries present here with us today. It is my pleasure to extend a hearty welcome to Honorable DC Sir, respected AC Ma'am, our worthy Principal Sir, my dear colleagues and my lovely students on the behalf of Kendriya Vidyalaya Joshimath. Today we have all gathered here to celebrate the National Sports Day, which is celebrated every year on 29th of August to honor the legendary hockey player Major Dhyan Chand. The day is observed to spread awareness on the importance of sports and daily activities in everyone's life. The President of India on this very same day honors prominent sporting personalities with elite awards including Khel Ratna, Arjun Awards, Dronacharya Awards and Dhyan Chand Award. The National Sports Awards 2020 will be held virtually for the first time on August 29 in the history of the awards. This year, the President of India, Mr. Ramnath Kovind, will present the award to the winners in a virtual mode. How far that little candle throws his beams, so shines a good deed in a weary world, said Shakespeare. Let us begin today's program by lighting the lamp to mark the auspicious beginning of Sports Day celebration. I would like to invite respected Principal Sir to light the lamp in honor of Major Dhyan Chand. Please, sir. Of the soul, and so he speaks, so is he. To move forward with today's program, I would like to call upon stage Mrs. Pooja Sharma to tell us all about the role of sports in a person's fitness and wellness. Please, ma'am. Please welcome all the staff. A very good morning to one and all present here. How does a person judge a nation's wealth? Is it from the amount of gold that are lying in the walls in the banks? Or is it from the living standard of its citizens? Or is it through some other factor? Ancient texts and wise men have said that healthy nation makes a wealthy nation, and the first step towards becoming prosperous is through a healthy body. Now the question comes, what is health? Health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely an absence of disease. So how can a person become healthy in the first place? The answer to this question is through sports and games. Just as a library is necessary for the mental health of a person, so is a playground for physical wealth. Keeping this fact in mind, our founding fathers and new education policy made sports an essential part of the educational system. Fit India movement is a nationwide movement in India to encourage people to remain healthy and fit by including physical activities and sports in their daily lives. It was launched by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi on 29th of August at Indira Gandhi Stadium in New Delhi on 29th of August 2019. Physical exercise is good for body, mind and spirit. Sports not only serve as an excellent way to improve general fitness but also offers unique benefits. Energy in sports from young age not only strengthen bones, muscles but also tone our body. Physical exercise helps in increasing strength and stamina. This may be hard to believe, but many doctors have seen many patients with beautiful young so-called perfect bodies who never listen to them. They are too wrapped up in body image and whole scam about being perfect. Ironically, their bodies are all in their heads. Your body and mind are meant to be a whole, to ensure that they are. Your whole existence is based on feedback loops. Body listens to mind and mind listens to body. Every cell knows when you are unhappy or stressed. The cell's awareness is expressed in chemical reaction instead of words. No matter, the message comes through loud and clear. So by continuously listening to your body and through sports, one can achieve physical fitness. Physical fitness is a state of health and well-being, and more specifically the ability to perform aspects of sports, occupations and daily activities. Physical fitness is generally
achieved through proper nutrition, physical exercise, and sufficient rest. All adults, as we all are adults now, so all adults should move more and sit less throughout the day to improve health-related quality of life, including mental, emotional, physical health benefits. Adults should perform at least 150 to 300 minutes per week aerobic physical activity. For aerobic exercise to be beneficial, it must raise the heart rate and cause perspiration. Anaerobic exercise features high-intensity movement performed in a short period of time. It is a fast, high-intensity exercise that doesn't require oxygen to produce energy. It helps to promote strength, endurance, speed, and power. Staying active and exercising regularly builds up a stronger heart. Regular physical activity is a factor that helps reduce an individual blood pressure, improve cholesterol level. These are the two key factors to make your heart stronger. American Cancer Society encourages the public to adopt a physically active lifestyle by meeting the criteria in a variety of physical activities such as swimming, lifting, running, etc. It is understood that cancer is not a disease that can be cured by physical fitness alone. However, because it is a multifactorial disease, physical fitness is a controllable prevention. Physical activity boosts the immune system. It has shown to increase the level of natural killer cells which are going to kill any germ which is entering in the body. So playing sports reduces the risk of osteoporosis and prevent bone loss. It benefits cardiovascular health. Research has shown that physical movement can affect the brain's physiology and number of neurons working in the brain itself. These changes are associated with improved attention, improved storage capacity of the brain, and very important, coping with the effect of pain and cravings. Please remember, continuous effort, not strength or intelligence. I'm saying continuous effort, not strength, not intelligence, is the key to unlocking our potential. If you are failed to prepare, then surely you are prepared to fail. So please make a plan in this way. Exercise 3 to 6 times a week, 20-60 minutes per session. Use stairs instead of elevator. Get consistent and adequate sleep. Learn to recognize early sign of illness. Listen to your body. Eat breakfast. It's the most important meal of the day. Eat variety of healthy foods. Stop smoking and protect yourself against passive smoking. Control your meal portions and try to eat smaller, more frequent meals throughout the day. Use sugar, salt, fat or alcohol in moderation. At last, I would like to say, doctors won't make you healthy, nutritionists won't make you slim, teachers won't make you smart, gurus won't make you calm, mentors won't make you rich, trainers won't make you fit. Ultimately, you have to take responsibility of your own to make yourself physically healthy. Thank you so much for listening. Such an informative and detailed speech. Thank you for sharing with us the nitty-gritties of sports activities and the actual concrete ways of gaining a better physical health. But also contribute to the sports there after their retirement. Next, the National Stadium Delhi was renamed Dhyan Chand National Stadium in 2002 in his honor. A hostel at Aligarh Muslim University, of which he was an alumnus, has been named after him. After that, in 1980, Government of India has issued a commemorative postage stamp and a first day cover in honor of Dhyan Chand. He remains the only Indian hockey player to have a stamp in his honor. Dhyan Chand was among the nominees considered for India's highest civilian award, Bharat Ratna for 2004, and there was support for it. Unfortunately, he didn't get this award. His sad endings, कोई भी आता है उसको शामिल होता है बट अपनी यादें पीछे छोड़ जाता है. In 1956, at the age of 51, he retired from the army with the rank of major. After he retired, he coached for a while and eventually settled in Jhansi. The last days of Dhyan Chand were not very happy because he was short of money and has somehow ignored by the nation. Once he went to a tournament in Ahmedabad and returned on him away not knowing who he was. It is very miserable for him. He developed a liver cancer and was sent to a general ward at AIIMS Delhi. He died on 3rd of December 1979 at the age of 74. The last years of the sporting legend were unfortunately spent in his grave. Some
was not recorded anywhere, but everyone says about Major Dhyanchand. The Dutch hockey authorities broke Dhyanchand hockey stick to check for a magnet. It is reported that German leader Adolf Hitler was so impressed with Dhyanchand's skill that he offered his German citizenship and a position of colonel in the German army, which Dhyanchand refused. Though to honor Dhyanchand, the resistance of Vienna, Austria had set up a statue with 4 hands and 4 hockey sticks, depicting his mastery in the game. कहा जाता है कि ध्यानचंद ऐसे खेलते थे कि लोग अपने ध्यान में ही नहीं रहते थे, तो ये कहा गया कि ऐसा खेल ध्यान खेल गया, ध्यान में सबके ध्यान रह गया. Some lines by Virag Gorakhpuri written, but I think these are very suited to Major Dhyanchand. किरणों के मिटाने से मिटे हैं न मिटेंगे, आफात जमाना से झुके हैं न झुकेंगे, उभरे तो दबाने से दबे हैं न दबेंगे, हम मौत के मारे भी मरे हैं न मरेंगे, हम जिंदा थे हम जिंदा हैं हम जिंदा रहेंगे. जय हिंद. थैंक यू. Our students are our greatest motivators. Even during this pandemic, they are the ones who give us hope. Moving ahead, I would like to announce the results of the poster making competition and felicitate our worthy students. Although we are doing it online, but I would like to congratulate our students who have won this competition. So here are the results. The first position is gained by Monika Chaudhary of class 9. The second position is held by Shubham Kumar from class 7. And on the third position stands Saurabh Kumar from class 6. I would like to tell our students that all your teachers are really proud of you, and although you are not here, but we are very proud of you. So thank you so much for participating. Thank you for being the hope, and thank you for motivating us to be so energetic. So congratulations, students. You've made us all very proud. Let's take this program further. मैम वो वीडियो डिस्प्ले होनी है, हाँ सर. चला दो उसको. चला देते सर, मैं अनाउंस कर देती हूँ. हाँ ना. Okay. Let's take this program further. Please put your hands together for Master Dhruv Garg of class 12 to deliver a talk about COVID-19 and fitness at home. मेरा नाम ध्रुव गर्ग है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण जो लॉकडाउन लगा है, उसके दौरान मैं घर में बैठ के किस तरह से अपनी फिजिकल वेलबींग का ख्याल रख रहा हूँ और फिजिकल फिटनेस पे लगातार काम कर रहा हूँ. फिजिकल फिटनेस हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है. अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हमारे देश के विकास में हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है. फिजिकली फिट रहने के बहुत सारे फायदे रहते हैं और फिजिकली जो फिट रहता है जो निरंतर रूप से फिजिकल एक्सरसाइजेस करता रहता है, उसकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है. और जितना भी अच्छा हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन रहेगा, उतना ही अच्छा हम लोग अपने वातावरण में रिस्पॉन्ड कर पाएंगे. हमारी बॉडी के ऑर्गन्स उतने ही अच्छे नरिश होंगे जितना ज्यादा हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा. और फिजिकली फिट रहना और फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारी बहुत सारी बीमारियों से भी ये हमें बचाता है. तो फिजिकली फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. लेकिन हम ये जानते हैं कि कोरोना वायरस और कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन था और इस दौरान बाहर की आवाजाही पूरी तरह बंद थी. सारे फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है वो सब बंद हो रखे थे और फिजिकल फिटनेस को घर में ही हम जितना मेंटेन कर सके वही चीज हमारे हाथ में थी. बाहर के जिम्नेशियम्स, योगिक सेंटर सब कुछ बंद था. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी जो लॉकडाउन थोड़े से अनलॉक शुरू हुए हैं, इस दौरान मैं किस तरह से फिट रह रहा हूँ और किस तरह से अपनी फिजिक का ख्याल रख रहा हूँ. सबसे पहले मैं अपने खाने में बहुत ज्यादा सावधानी बरतता हूँ, क्योंकि जिस तरह का हमारा खाना रहेगा उसी तरह से हमारा बॉडी बिहेव करेगा. बिकॉज आवर बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस बॉडी में एक अच्छा खाना, इस तरह का आहार दें कि कम से कम आलस में और कम से कम फैटिग के बिना ही फुर्ती से काम करे. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम पका हुआ खाना खाऊं, क्योंकि जो पका हुआ खाना रहता है उसमें ऐसे एंजाइम्स मर चुके होते हैं जो हमारी पाचन क्रिया को आसान बनाए. इसलिए वो हमारे पाचन क्रिया के लिए बोझ की तरह रहता है वो खाना, जो पका हुआ खाना रहता है. इसलिए मैं कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा जीवंत भोजन, जैसे कि पकाया ना गया हो, जैसे कि फल है और सब्जियां हैं, सलाद है
उसके अलावा आप पीनट्स खा सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स खा सकते हैं। ये सब जो हमारी बॉडी को एनर्जेटिक भी रखें और हमें यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पे बोझ की तरह ना रहे। इन सब खानों को खाने के बाद मैं देखता था कि हमारी बॉडी में ज्यादा फुर्ती रहती थी। दूसरी चीज मैं करता था कि हमें फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए एक अच्छी डाइट की जरूरत है, जो कि ऑफकोर्स इस लॉकडाउन के दौरान नहीं था। तो मैंने ऑनलाइन कोशिश की कि मैं कोई अच्छी डाइट को ढूंढ सकूं। तो मैंने एक लीग फिटनेस ग्रुप को ढूंढा है। प्ले स्टोर में इसके बहुत अच्छे ऐप हैं और आपको कोई भी फिटनेस गोल हो, चाहे आप मसल गेन करना चाहते हैं, आप फैट लॉस करना चाहते हैं, या फिर कोई भी आपका फिटनेस गोल है, उसके हिसाब से ये ऐप देते हैं और 30 डेज का कोर्स रहता है। तो मैंने आर्म वर्कआउट के लिए 30 डेज का कोर्स किया है, स्ट्रेचिंग के लिए 30 डेज का कोर्स किया है और इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जिस तरह से अनोखी प्रक्रिया शुरू होने लगी है, तो अब मैं निरंतर रूप से दौड़ने भी जाता हूँ और मैंने देखा है कि काफी फर्क आया है। पहले मैं आधा किलोमीटर दौड़ पाता था, वो भी बहुत मुश्किल से, और अब मैं 3-3.5 किलोमीटर बड़ी ही आसानी से दौड़ लेता हूँ। तो लॉकडाउन के दौरान मैंने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है और इससे मेरे फिजिकल वेलबींग में बहुत अच्छा फर्क पड़ा है। एक्सरसाइज के अलावा मैं योग भी करता था और अभी भी करता हूँ, क्योंकि योग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी एंशिएंट इंडिया की तकनीक है जिसे हजारों साल से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं फिजिकल वेलबींग के लिए। और आज तो योग का कल्चर पूरे विश्व में फैल चुका है और पूरा विश्व जानता है कि योग कितना ही कार्यशील रहता है। जिस बीमारी का इलाज बड़े-बड़े अस्पतालों में नहीं हो पाता, उसका इलाज आप योग से कर सकते हैं। कुछ योग क्रियाएं, कुछ योग प्राणायाम जो कि बताए गए थे कि कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए बहुत जरूरी है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जैसे कि कपालभाति है, अनुलोम विलोम है। इन सब का मैंने निरंतर अभ्यास किया है और मैंने पाया है कि मेरी इम्यूनिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग हुई है और मेरी डेली लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं और मेरा फोकस काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। बट एक प्रॉब्लम ये रहती है कि हम लोग योग को समझते हैं कि ये शरीर को स्ट्रेच करना है, अलग-अलग आसनों शरीर को मोड़ना ही योग है। एक्चुअली योग का असली अर्थ है कि ध्यान योग के जरिए हम अपना मेंटल फोकस को तेज करें, क्योंकि जितना अच्छा हमारा मेंटल फोकस होगा, हम अलग-अलग चीजें या फिर जो भी हमारा काम है उसमें हम ज्यादा अच्छी तरीके से कार्य कर पाएंगे। तो मैंने ध्यान योग की कोशिश की है करने की, ओम का उच्चारण करता था पद्मासन में बैठ के और इसका मेरी पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मेरा फोकस एक अलग स्तर पे आया है। तो इस लॉकडाउन में किसी खिलाड़ी की महानता को नापने का सबसे बड़ा पैमाना है कि उसके साथ कितनी किंवदंतियां जुड़ी हुई। इस हिसाब से तो मेजर ध्यानचंद का कोई जवाब नहीं था। हॉलैंड में लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक तोड़वाकर देखी थी कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है। जापान के लोगों को अंदेशा था कि उन्होंने अपनी स्टिक में गोंद लगा रखी है। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गई हों, लेकिन अपने जमाने में इस खिलाड़ी ने किस हद तक अपना लोहा बनवाया था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वियना के स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई थी जिसमें उनके 4 हाथ और उनमें 4 स्टिकें दिखाई गई, मानो वो कोई देवता। पूर्व 1936 के ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले एक अभ्यास मैच में भारतीय टीम जर्मनी से 4-1 से हार गई। ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा बोल में लिखा, जब तक मैं जीवित रहूंगा इस हार को कभी नहीं भूलूंगा। इस हार ने हमें इतना हिला कर रख दिया कि हम पूरी रात सो नहीं पाए। हमने तय किया कि इनसाइड राइट पर खेलने के लिए आईएनएस दारा को तुरंत भारत से हवाई जहाज से बर्लिन बुलाया जाए। जर्मनी के खिलाफ फाइनल मैच 14 अगस्त 1936 को खेला जाना था, लेकिन उस दिन बहुत बारिश हो गई, इसलिए मैच अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला गया। मैच से पहले मैनेजर पंकज गुप्ता ने अचानक कांग्रेस का झंडा निकाला, उसे सभी खिलाड़ियों ने सैल्यूट किया। उस समय तक भारत का अपना कोई झंडा नहीं था, वो एक गुलाम देश था, इसलिए यूनियन जैक के तले ओलंपिक खेलों में भाग ले रहा। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 लोग फाइनल देखने के लिए मौजूद थे। देखने वालों में बड़ौदा के महाराजा और भोपाल की बेगम के साथ साथ जर्मन नेतृत्व के चोटी के लोग मौजूद थे। हाफ टाइम तक भारत सिर्फ 1 गोल से आगे था।
इसके बाद ध्यानचंद ने अपने स्पाइक वाले जूते उतारे और नंगे पांव खेलने लगे। इसके बाद तो गोलों की झड़ी लग गई। दारा ने बात में था। 6 गोल खाने के बाद जर्मन रफ हॉकी खेलने लगे। उनके गोलकीपर की हॉकी ध्यानचंद के मुंह पर इतनी जोर से लगी कि उनका दम टूट गया। Honorable Principal Sir to share his message on this day with us. Please, sir. सबसे पहले तो ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर KVS साहब देहरादून, ऑनरेबल असिस्टेंट कमिश्नर, मेरे प्यारे शिक्षक, अभिभावक, बच्चे, आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सबको आज राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री मुकेश जी ने बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया, श्री प्रमोद जी ने जानकारी दी, पूजा मैम, शिल्पा मैम, अनुपम मैम, सायमा मैम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना इंफॉर्मेटिव स्पीचेस आपने दी हम लोगों को, इतनी सारी जानकारी दी स्वास्थ्य को लेकर, फिट इंडिया को लेकर, नेशनल स्पोर्ट्स डे को लेकर, मेजर ध्यानचंद को लेकर और खेल के महत्व को लेकर। खेलना इंसान का स्वाभाविक स्वभाव है। खेलना स्वभाव है। बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है वो कुछ ना कुछ खेलता है। हमारे पुराणों में भी, चाहे महाभारत युग से लेकर आज तक में, खेलना हमारी जीवनचर्या का अभिन्न अंग रहा है। और खेलना ही एकमात्र ऐसी गतिविधि है जिसमें अहंकार नहीं होता। हम जब बचपन में खेलते थे तो जब खेल कर घर लौटते थे तो बड़ा आनंद आता था। अब कोई ये पूछे आनंद क्यों आता था? आनंद बस खेलने में आनंद आता। खेलने का कोई उद्देश्य नहीं, हम आनंद के लिए खेलते हैं क्योंकि वहां हमारे अंदर अहंकार नहीं होता। जब हम खेल के वापस आते हैं तो अरे वाह बड़ा अच्छा लगा। वो जो अच्छा लगा, वो जो गुडनेस फील होती है हमारे हार्ट के अंदर, वो हमारा स्वाभाविक अंग है। जहां तक नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात है, ये सिर्फ मेजर ध्यानचंद की उपलब्धियों को याद करना ही नहीं, मेजर ध्यानचंद के बाद आए सभी खिलाड़ियों को याद करना है। इसमें कोई शक नहीं। मेजर ध्यानचंद भारत में पैदा हुए वर्तमान युग में सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक, मगर उसके बाद भी बहुत सारे खिलाड़ी हुए हैं और आज हम सब उनको नमन करते हैं, हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और कोशिश करते हैं कि एज ए शिक्षक, एज ए अभिभावक, हम सब अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करें और वो खेल का जो आनंद है वो आनंद लेने के लिए हम उन्हें इंस्पायर करें। 1928, 1932, 1936 भारत के इतिहास में स्वर्णिम युग के रूप में रहेंगे। मगर इसके बाद भारत को वर्ल्ड कप जीतना, चाहे क्रिकेट में हो, बैडमिंटन के अंदर नेशनल चैंपियनशिप जीतना, इंटरनेशनल लेवल पर बॉक्सिंग मैरीकॉम के द्वारा जीतना, लैंडर पेस, साइना नेहवाल, बहुत लंबी खिलाड़ी, बहुत लंबी सूची है खिलाड़ियों की और ये आगे भी आती रहेगी। ये सब हम सबकी प्रार्थना भी है और हमारा विश्वास भी है। स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारी बातें हुई। स्वास्थ्य हम किसको कहते हैं? पूजा मैम ने बहुत सारी बातें बताई, प्रमोद सर ने बहुत सारी। मुझे लगता है, और ये मेरा व्यू है, कोई व्यक्ति स्वस्थ है इसकी एक ही परिभाषा है। आपको अपने शरीर का पता नहीं जब चलता तब आप स्वस्थ हैं। इफ यू डोंट फील योर बॉडी, यू आर हेल्दी। अगर आपके कंधे में दर्द है, आपको अपने कंधे का पता लग रहा है, इसकी मीन्स कंधे में कुछ समस्या है। आपके हेड में दर्द हो रहा है, इट मीन्स आप अस्वस्थ हैं। जब आप स्वस्थ होते हैं, आपका शरीर, आपको एहसास ही नहीं होता आपका शरीर है। ये स्वास्थ्य की परिभाषा है, बड़ी सिंपल। और इस स्वास्थ्य को मेंटेन करने के अलग अलग मापदंड अलग अलग टाइम में है। हमें याद है बहुत सालों पहले स्वास्थ्य का एक मापदंड पूरी दुनिया में प्रचलित हुआ, बॉडी को बल्कि बनाना, मसल्स बनाना।
वक्त बदला, उसके बाद आ गया बॉडी को स्किनी बनाना, एब्स बनाना, उसको स्वास्थ्य का मापदंड मान लिया गया। उसके बाद नए नए मापदंड जुड़ते गए, क्या खाएं क्या ना खाएं। बीच में आ गया BMI, स्वास्थ्य का मापदंड, आज भी है, मगर अभी वर्तमान रिसर्चेस बताती है BMI के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। और अभी वर्तमान में बिल्कुल अभी स्वास्थ्य का मापदंड है आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। आप पतले हो, बॉडी बिल्डर हो, फास्ट दौड़ते हो, मगर इसके बावजूद आज के युग में, आज की तारीख में स्वस्थ वो है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो बहुत सारे मापदंड हैं, मुझे लगता है इन सारे ही मापदंडों को मिला दें तभी एक नई डेफिनेशन बनेगी। बाकी मेरी डेफिनेशन तो ये है, जब शरीर का पता ना लगे, जब आप हवा में उड़ते उड़ते चलो, जब मन में आनंद की लहरें उठे, आप स्वस्थ हो, यू आर हेल्दी। बहुत सारे स्टेप्स मैंने भी बताए, डेली वॉक करना, रनिंग करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ भी ऐसी चीज जिससे हम फिजिकली, जैसे प्रमोद सर ने कहा, एक्टिव हो, कुछ ना कुछ करें। ध्रुव ने बताया वो योगा करता है, ध्यान करता है, खान पान पे नियंत्रण रखता है, हेल्दी हैबिट्स उसने यूज करती है, वो भी अच्छा है, सब अच्छा है। इन सब चीजों को कहीं ना कहीं हम जानते भी हैं, मगर कहीं ना कहीं हम लोग आलस कर जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक आलस आ जाता है। हम एक तो ये कि लोग क्या कहेंगे, जैसे प्रमोद सर ने कहा, लोग, अरे लोगों को कहने दीजिए, हमारा अपना स्वास्थ्य है और हमें उसके लिए एक्टिव होना ही चाहिए। जैसा मार्टिन लूथर किंग ने कहा है 1952 की स्पीच में, जरूर सुनिए, आई हैव अ ड्रीम। उन्होंने कहा कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलो, आप चल नहीं सकते तो रेंगो, और रेंग नहीं सकते तो हिलो, मगर जहां हो वहां कुछ ना कुछ करो, वैसे बैठे ना रहो। और ये सिर्फ शरीर में ही नहीं, ये मन के लिए भी है, ये हमारे कैरियर के लिए भी है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहो, कहीं रुको मत, क्योंकि रुकने में ही मरते हो और एक न एक दिन तो ऐसा होना ही है। तो उससे पहले क्यों ना हम कुछ दौड़ लें, क्यों ना हम कुछ गहरी सांसें ले लें, क्यों ना हम किसी को मोटिवेट कर लें, क्यों ना हम अपने आप को मोटिवेट कर लें। स्वास्थ्य की शुरुआत, ये दो बातें हैं, शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होता है, या उल्टा कहें, मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी अच्छा होता है। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं हम उन्हें स्वीकार करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए हम उससे आगे बढ़ सके अपनी कमियों से। घबराना नहीं है, शरीर को स्वस्थ तो रखना ही है, मगर स्वस्थ की, शरीर की किसी कमी की वजह से अपने मन को उदास नहीं करना है। आपके सच्चे स्वास्थ्य की शुरुआत नहीं से हो जाएगी जब आपका मन स्वस्थ होगा। लेट अस एक्सेप्ट आवरसेल्व्स व्हाटएवर वी आर, otherwise nobody will accept us, nobody will accept us। एक और बात है, जहां तक खेलों की बात या फिटनेस की बात कही है, उसके अंदर केरियस और हमारी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, मगर ये काम तब तक अधूरे हैं जब तक कि हम उसमें इन्वॉल्व ना हो। जैसा कि सर ने भी बताया, ये आधे अधूरे हैं जब तक हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे और हमारे बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो क्यों ना हम इसको अपने घर में एक आदत ही बना लें। जरूरी नहीं कि आप दौड़ने ही जाएं। एक माँ जो घर में 6 घंटे खड़े होकर खाना बना रही है, पूरे बच्चों को देख रही है, लगातार क्विक मूव कर रही है, वो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है। आजकल महिलाओं के पास या पुरुषों के पास समय की कमी रहती है, तो आप घर के अंदर ही वॉक कर लें, योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें, और कुछ नहीं तो हंस लें, खुल के हंस। खुल के हंसना भी एक अभ्यास है। आपके अंदर जो जड़ी हुई ग्रंथियां हैं ना, जो तनाव है, वो सब रिलीज हो जाते हैं। डांस भी कर सकते हैं अपनी फिटनेस के लिए, डांसिंग भी कर सकते हैं, एरोबिक्स भी कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी।
बट कुछ करिए। और बच्चे हमारे, बच्चों के अंदर तो बचपन से ही आदत ही होती है खेलने की। आप उन्हें रोकना भी चाहें तो नहीं रोक पाएंगे, तो छोड़ दीजिए, फ्री कर दीजिए। और इसी के बाद मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, क्योंकि फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा इंतजाम किया श्री प्रमोद कुमार जी ने, बहुत अच्छा, मुझे प्रसन्नता हुई। और जितने भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मैं वोट ऑफ थैंक्स नहीं दे रहा, मगर मैं अपनी तरफ से पर्सनल थैंक्स बोल रहा हूँ लोगों को कि थैंक यू वेरी मच। आप सब यहाँ पर आए, आपने प्रोग्राम किया, बच्चों को मोटिवेट किया, और आप सब लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। रोज शाम को मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग वॉक पे जाते हैं, वो जो नहीं जा रहे वो शायद घर में योगा कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, या कुछ भी कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे। इसको कंटिन्यू रखिए, करते रहिए, इसको प्रसन्न रहिए, अपने आप को स्वीकार कीजिए, आनंदित रहिए। Implement the same in our lives. What a pleasure it is to be gathered here to celebrate the spirit of physical and mental well-being. As we approach towards the end of this program, it is my pleasure to extend a vote of thanks to all the participants that have spared their precious time and joined us here today. I, Shilpa Sharma, thank you all on the behalf of Kendriya Vidyalaya Joshimath for gracing us with your presence, for motivating us to become our best versions by staying active, healthy and fit. Thank you so much everyone. Stay safe, keep smiling, keep shining.